اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کے پتے جسے نمرہ احمد نے تحریر کیا ہے، اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ رات دیو کدا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی، جس میں جھلملاتے سے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھیں۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہروں پہ اتنی اداسی آ گئی، انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشی اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے دیو کدا اچھا لگا تھا، مگر پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرسویزا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور دیو کدا سے اسے کھینچتا ہوا ایک لگاؤ تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ کے رکھے تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارا بوجھ اتار دینے کے لیے احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشغول کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا، اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت احسان کیا، وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوائے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے، البتہ نہ اس نے اماں اور نہ ہی ابا کو اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبدالرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اسے اندازہ ہو چکا تھا، مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی، آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے تقسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا بھی نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دیکھ رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پر پاؤں پر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پوچھ تھی۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھر میں خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ہم دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے دبی کھڑی اس کمرے میں گری پڑی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، بہتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی اس کیفیت میں یہی چلاتی تھی۔ عائشہ اس طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انہیں انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں
उठ उठ कर फिजा में गुम हो रही थी और वो यकटिक गुमसुम सी बहकती लकड़ियों को देखी गई। तो आज के दिन हम बुला देंगे उनको, जैसा कि वो अपने उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और हमारी निशानियों का इनकार किया करते थे। सूरह अल अराफ आयत नंबर 52 51। दफातन आयशा ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़ी। उसे यूं आखिरी जीने पे बैठे देखकर इसकी आंखों में फिक्रमंदी उभरी। उसने कुरान बंद किया और उठकर एहतियात से शेल्फ के ऊपरी खाने में रखा। फिर इसके साथ जीने पे बैठी। ऐसे क्यों बैठी हो हया? वो नन्ही से पूछ रही थी। हया गुमसुम सी उसका चेहरा देखी गई। स्कार्फ में लिपटा आयशा का चेहरा नीम अंधेरे में भी दमक रहा था। इसकी आंखें अब सियाह लग रही थी। लड़की इतनी पुरसुकून, इतनी नर्म कैसे रहती थी हर वक्त। इसके चेहरे पे कोई धूल, कोई धुंध, कोई मोहब्बत क्यों नहीं होता था? साफ शफाफ उजला चेहरा, मासूमियत का उमड़ी हया। इसने धीरे से हया की बुदमच्छी पे अपना हाथ रखा। हया ने चेहरा जरा सा फेरा। इससे रोशनी नहीं देखी जा रही थी। इसकी आंखें अंधेरे की बहुत आदी हो चुकी। दुनिया धोखे में कैसे डालती है आयशे? वो अब बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी। वो अलाव को देख रही थी जिससे सुर्ख दाने उड़ उड़कर फिजा में तहलील हो रहे थे। जब ये अपनी चमकने वाली चीजों में इतना गुम कर लेती है कि अल्लाह भूल जाता है क्या, तो मुझे भी दुनिया ने धोखे में डाल रखा है। यही कहो कि पहली दफा धोखा इंसान भूलपन में खाता है, मगर बार बार खाए तो वो गुनाह बन जाता है। और किसी एहसास होने के बाद ना खाए तो इसे एक बुरी आदत समझकर भूल जाना चाहिए और जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। नए सिरे से इसे यू टर्न लिया आसान होता है क्या? इंसान का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लिबास पहने। क्या ये बुरी बात है? इसकी आवाज में बेबसी डर आई थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या गलत था कि सही। सब गुटमुट हो रहा था। नहीं, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये चीजें जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, मगर उनको आपकी पूरी जिंदगी नहीं बनना चाहिए। इंसान को इन चीजों से ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनकी जिंदगी लकड़ी के खिलौने बनाने, मछली पकड़ने और सच्ची मोती चुनने तक महदूद होती है, और कुछ लोग बड़े मकासद लेकर जीते हैं। फिर वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते हैं। खैर इरादी तौर पर एक निगाह अपने कंधे पे डाली जहां आस्तीन के नीचे WHO लिखा था। और जिनकी जिंदगी में बड़ा मकसद ना हो वो क्या करेंगे? वही जो मैं करती हूँ, इबादत। हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, सो हमें हर काम को इबादत बना लेना चाहिए। इबादत सिर्फ रोजा, नवाफिल और तस्बीह का नाम नहीं होता, बल्कि हर इंसान का टैलेंट भी उसकी इबादत बन सकता है। मैं बाहर के लिए फूलों के हार आने के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी ये सिलाई रहमी मेरी इबादत है। मैं पजल बॉक्स और मोतियों के हार बेचती हूँ। मेरा रिस्क तलाशना मेरी इबादत है। ये छोटे छोटे काम करते करते इंसान बड़े बड़े मकासद पा लेता है। और इंसान इन चीजों के लिए मजबूती कहाँ से लाया है? मुझे लगता है हम लड़कियों ने अपने ऊपर फर्जाइल स्टिचर्स, नाजुक स्टिकर्स लगा रखे हैं। फर्जाइल स्टिकर समझती हूँ ना, जो नाजुक अशिया की पैकिंग के ऊपर चिपका होते हैं और उन पर लिखा होता है हैंडल विद केयर। वो स्टिकर्स हम लड़कियां अपनी पेशानी पर लगाए रखती हैं, बगैर किसी का जरा सा तंज हो या बेचारी बड़ी डांट, जरा सा कांटा चुभ जाए या दिल टूट जाए। हम कंटूर होती हैं। अल्लाह ने हमें इतना नाजुक नहीं बनाया था, हमने खुद को बहुत नाजुक बना लिया। और जब हम लड़के इन चीजों से ऊपर उठ जाएं तो हमें जिंदगी में बड़े मकसद नजर आ जाएंगे। आयशा खामोश हो गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ रही थी। आयशे गुल, तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। दुकान से जरा सा मुस्कुरा कर बोली तो आयशे धीरे से हंसती। तुम भी बहुत प्यारी हो, ये तो तुमने मरवत में कहा है। अच्छा आयशे गुल, कल से मैं तुम दोनों के कमरे में सो जाया करूं। मुझे ऊपर वाले कमरे में तन्हाई महसूस होती है। ठीक है, फिर हम कल अपने कमरे की सेटिंग बदल देंगे। बड़ा वाला डबल बेड गेस्ट रूम में इधर ले आएंगे। आयशा उठते हुए बोली। उसने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया। जो भी था आयशा की बातें इसके दिल को बहुत उलझा दिया करती थी। वो कभी भी जिंदगी में ऐसे तसबस और शशोपट में मुब्तला ना रही थी जैसे अब गुजर रही थी। अगले रोज इससे मोबाइल तो होटल ग्रैंड, वो होटल जो व्यू कदा में एयर पाशा का कर समझाता था, तक के एक मुलाजिम ने सिम समेत ला दिया, मगर वो बेड शिफ्ट न कर सकी कि वो खुल नहीं रहा था। उन्होंने ये काम एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। सो रात को जब वो सोने लेटी तो ऊपर अपने कमरे में अकेली थी, आंखें बंद करती इसके जहन के पर्दों में वही रात देखती से लाकर भड़कता लाव छाने लगा। तो वो मुस्तरिफ से उठ बैठी और रात का पीछा नहीं छोड़ती थी। हेलो, इसने फोन कान से लगाया। हया, मेजर अहमद हियर। वही भारी खूबसूरत शास्ता आवाज। इसने गहरी सांस ली। लोग इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वो जितना इनको ऊपर धतकारे वो इसका साय की तरह ताकुब करते रहेंगे। कहिए किस लिए फोन किया है आपने? इसकी आवाज में खुद बखुद रुका। इधर आई। ये पूछना बेसूद था कि मेजर अहमद को इसका नंबर कैसे मिला, और फोन करना भी बेसूद था। और फिर फोन कर लेगा और करता ही रहेगा।
इसे किसी और से अब डील करना होगा, हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। इसकी आवाज बहुत जलती है, तकान से बड़ी, गम से लबरेज, उदास, मुतफक्किर है। ने लम्हे भर सोचा, इसका जहन चंद ख्यालात तो तरतीब देने लगा। देखिए मिर्जा अहमद, इसने सोच सोच कर कहना शुरू किया, अगर तो आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं किसी शादीशुदा औरत से गैर मुनासिब है तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप कोई बाहिमी मफाद की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको सुन रही हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आवाज फोन पे उभरी। हैरी लम्हे भर सोचा, इसका जहन चंद क़यादात को तरतीब दे रहा था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है जो आपके साथ हुआ। वो एकदम बिल्कुल साकित होकर इसकी वाकई खबर फैल चुकी थी। तो क्या वो सब राज नहीं रहा? एक बोझ सा इसके दिल पे आन गिरा था। फिक्र न करे, पाकिस्तान में किसी को नहीं हुआ है। वो इसके लहजे पे गौर करने लगी। ये क्या कोई धमकी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में सबको इल्म हो सकता है? इसके पास यकीनन इसकी वीडियो थी और बादशाह के ये बहुत सी तस्वीर भी थी उसके पास। ब्लैकमेलर्स, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप जिंदगी में कोई आपको जन्नत के पत्ते ला कर दे तो इन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देगा। इसकी आवाज में दिल को चीरता हुआ दर्द था। और मैंने भी आपसे कहा था कि हम दुनिया वालों ने जन्नत कहा, देखिए आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे इस वाक़े ने जितनी तकलीफ दी शायद जिंदगी में किसी और शय ने इतनी तकलीफ नहीं दी। मैं अगवा हुई, जुल्म मेरे साथ हुआ, तो आप मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? हर किसी को अगवा नहीं करते, खूबसूरत लड़कियों को करते हैं। मैं खूबसूरत हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो हैरान नहीं हो रही थी, वो पूछ रही थी। उन्हें पता चला कि आप खूबसूरत है, इसमें आपका कसूर है। वो भी तंज नहीं कर रहा था, बस मुंह अंदाज में कह रहा था। तो अब मैं क्या करूं? अब इन सारे मसाइल से कैसे जान छुड़ाऊं? कौन सा मसला? आप मुझे बताएं, आप मुझे हमेशा अपना खैर हुआ पाएंगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एक फैसले पर पहुंच के कहने लगे, कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे तो क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलर एक बेनथे बेल की तरह होता है यार। इससे भागेगी तो वो आपका ताक़ुब करेगा और थका थका कर मार देगा। सो इससे कमर करके भागने के बजाय इसका सामना करें और आगे बढ़कर इसके सींगों से पकड़ ले उसे। दुनिया का कोई ऐसा ब्लैकमेलर नहीं है जिसकी अपनी कोई ऐसी कमजोरी ना हो जिस पे उसे ब्लैकमेल ना किया जा सके। आपकी कमजोरी क्या है? बहुत सी हैं कमजोरियां, पूछी नहीं तलाशी जाती हैं, लेकिन मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं। अगर आप मुझे कमजोरी तलाश करनी हो आपकी तो पूछती नहीं। इसने जरा महसूस से अंदाज में जताया। वैसे वो पजल बॉक्स मुझे किसने भेजा था? वो जवाबन खामोश रहा। मुझे ना, मेरा ख्याल है अब हम ये डम गेम बंद कर दें और ये बात तस्लीम कर लें कि आप मुझसे ख्वाजा सरा बनकर मिलते रहे। इसने पिंकी के बजाय ख्वाजा सरा कहना मुनासिब समझा। मैं तस्लीम करता हूँ, आप पिंकी थे, मगर डॉली कौन था? ARP की माँ ने बताया तो था आपको। क्या मैंने कभी डॉली का असली चेहरा देखा है? नहीं, आप उसे नहीं जानती। वो बॉक्स मुझे डॉली ने भेजा है, मगर इसकी पहली वो किसने लिखी थी? कौन लिखता है ये पहलियां? क्या आप लिखते हैं? वो खामोश रहा। मेजर साहब, मुझे सच सच बता दें, वैसे मैं जानती हूँ कि वो आप ही लिखते हैं। आप जैसे लोग मंजर आम पे आने के बजाय पस मंजर में बैठकर अकल की डोरे हिलाते रहते हैं। जी, वो मैं ही लिखता हूँ। वो क्रीमी आई वाली पहली भी आपने लिखी थी, बल्कि आपसे लिखवाई गई थी। जी, वो मैंने ही लिखी थी। वैसे पजल बॉक्स खोल लिया आपने? इसने पहली दफा मेजर अहमद की आवाज में सरसरी सा तजस्सुस महसूस किया। क्या इसकी कमजोरी इसके हाथ में आने लगी थी? जी, खोल लिया और मुझे वो मिल गया जो डॉली मुझ तक पहुंचाना चाहती थी। वो बालों की लट उंगली पे लपेटती बड़े इत्मीनान से कह रही थी। अपनी बात के अख्ताम पे इसने वाज़ेह तौर पे कुर्सी के पहियों की आवाज सुनी, जिसे रिवॉल्विंग चेयर पे टिक लगाकर बैठा मेजर अहमद करंट खाकर आगे को हुआ था। वाकई इसकी आवाज में मोहताज सी आ रही थी। जी, पहली आसान थी, मैंने पूछ ली। वैसे जो इसमें था वो इस वक्त मेरे हाथ में है और इसने मुझ पर एक बहुत हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। जो बॉक्स में था वो आपके हाथ में है और इसने आप पर एक इंकशाफ किया है। वो रुक रुक कर उसके अल्फाज दोहराकर जैसे तस्दीक चाह रहा था। जी बिल्कुल। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नहीं, आपसे अभी तक वो बॉक्स नहीं खुला, लेकिन मुझे आपका यूं जहन इस्तेमाल करके मुझे घेर कर कुछ अगलवाने की कोशिश अच्छी लगी। ने तिल मिलाकर मोबाइल को देखा। इसे कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, वो जरा बेजारी से बोली। आप बेशक सो जाए, मगर प्लीज
फोन बंद मत कीजिएगा। वो जैसे उल्टी कर रहा था। जब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? मैं आपकी खामोशी सुनूंगा। मैं सो रही हूँ, बाय। इसने तकिए पे सर रखते हुए जान छोड़ो वाले अंदाज में कहा, मगर फिर इसने वाकई मोबाइल बंद नहीं किया। एक हाथ से फोन कान से लगाया, दूसरा बाजू आंख पे रखे वो कब सो गई सेव नहीं हुआ। सुबह उठते इसने मोबाइल चेक किया तो मेजर अहमद की कॉल का दौरानिया 3 घंटे और 20 मिनट लिखा रहा था। वो दम बखुद रह गई। इसने तो बामुश्किल 10 मिनट मेजर अहमद से बात की थी, तो क्या 3 घंटे वो इसकी खामोशी सुनता रहा था? अजीब आदमी था ये भी। फिर जिस रोज उसने आयशा के साथ इन दोनों बहनों के कमरे की सेटिंग तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया, इस सुबह इसने जान को अपना नंबर मैसेज कर दिया बगैर किसी बात के। जो आयशा के हमरा बड़ा बेड अंदर रख के और छोटा बेड बाहर निकालकर शावर लेने के लिए तौली के साथ बाल थपथपाकर सुखाती बाहर आई तो बेड पर रखा इसका मोबाइल बज रहा था। जहान कॉलिंग। अम्मा से जब इसने जहान का नंबर लिया था तो सिर्फ मोबाइल में महफूज ही नहीं किया बल्कि जबानी भी याद कर लिया। अगर कभी दोबारा अस्सलाम वालेकुम इसने एक दिल नशीन मुस्कुराहट के साथ फोन कान से लगाया। दूसरे हाथ से वो तौलिया नरमी से गीले बालों में रगड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो भी दूसरी तरफ से जैसे बहुत अच्छे मूड में था। बहुत अच्छी हो तुम, जैसा पहले था। और तुम फोन ठीक करा लिया? मम्मी कह रही थी तुम्हारा फोन खराब हो गया था। हाँ बहुत खराब हो गया था, वैसे भी 1-2 रोज पहले नया फोन लिया है। वो तलिया कुर्सी की कुछ पे डालते हुए बोली। फिर तो बहुत जल्दी नंबर दे दिया तुमने। मुझे तवक्को नहीं थी कि किसी को मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसलिए। अच्छा अपना ही तंज छोड़ो, मुझे बताओ तुम ड्रोम में हो? मैं जरा मुजाफात में आया हूँ, तुम्हारे कैंपस से 10 मिनट की ड्राइव पे हूँ। चलो फिर साथ लंच करते हैं। इसी पल आयशा कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर रुक गई। वो मुतज़्ज़ब सी फोन पर कह रही थी, नहीं मैं अभी कैंपस। तो आयशा ने लबे मेरे को गौर से देखा, फिर जैसे समझ कर सर हिलाती आगे राइटिंग टेबल पर रखी मग से पेन निकाला, नोट पैड के ऊपरी सफे पर कुछ लिखा। इसने पैड से दमाया, फिर खुद बाहर चली गई। हया ने रुक कर सफे पर लिखे अल्फाज पढ़े, सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया दुस जाने वो पूछ रहा था। जहान मैं बेवकता में हूँ। पैड पकड़े इस पर लिखी तहरीर को देखते हुए बोली, ओह फ्रेंड ट्रिप था कोई? मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर है इधर। और तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा मसरूफ होते हो। इसने हमले का रुख बदला तो वो दिफाई पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ कहाँ होता हूँ। फिर कल मिलते हैं, तुम कल बेवकता आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड के साथ इधर ही रहूंगी। कल मैं मसरूफ हूँ। अच्छा परसों मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ने फोन ठक से रख दिया। जहान उसने झिझलाकर मोबाइल कान से हटाया। इस शख्स को कोई पता नहीं चलता इसे कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बाहर फिर से आवाज देने लगी, हया ये क्रीमी आई क्या है? कोई हिंट दे दो। जो बुझेगा गिफ्ट इसी का होगा। इसने जवाबन जोर से आवाज दी। बाहर फौरन खामोश हो गई। अब्दुल रहमान का तोहफा किसी दूसरे से शेयर करने का तसव्वुर भी इसके लिए सुहाने रू था। इस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब इसका मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पे जहान का नाम जल बुझ रहा था। इसने खमारा लो सा हेलो कहते फोन कान से लगाया। मैं फेरी से बेकदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके छूट बैठी। तुम्हारे उसके लहजे में सारे जमाने की खुशी दर आई थी। हाँ मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए। हंस कर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशे किचन में काम करती नजर आती बाहर एक कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी? बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने कहा है तुम पूरा सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। मगर आयशे पहल ने मुंह वसूल कर प्लेट पर हटाई। आयशे मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौकट में आन रुकी। मेरा कजन आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाते तैयार होने में वापस भाग गई। 2 रोज कबल हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ इसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। इसने नीली जींस पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधे पर इसने आयशे का मैरून पोटू पहन लिया था। बाहर को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोर्ट पर आ गई। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट का एक बहन देख रहा उससे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मुतलाशी निगाहों से देखने लगी। तभी उसे जहान नजर आ गया। वो नीली जींस की सूरत में हाथ जेबों में डाले सामने से चलता आ रहा था। इसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। जहान ओह है, इसने हाथ ऊंचा करके बुलाया।
जहान ने देख लिया था, तभी धीमा सा मुस्कुराता उनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई, थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है आयशे गुल, मैं इसी के साथ रह रही हूँ। आयशे ये मेरा कजन है जहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। आयशे ने अपने नैनो असली खुश इखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, इसने मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दी। तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों, हमने तो खुद हया को बस देसरार चंद दिन इधर रुकने का कहा था। आयशे जरा चीप गई। फिर थोड़ी देर ही वो रुक पाई, किसी जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाजार में रेस्टोरेंट के खुले फ्रंट से इश्तिहार अंगेज खुशबू सी बाहर आ रही थी। फिर आ जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। मगर फिर मैं करूंगा। इसने वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्म और रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेजबान करता है और उधर मेजबान मैं हूँ जहान। छोड़ो तुर्क रसूम को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र तुम्हें याद तो रहा। इसने नोट पकड़े और रेस्टोरेंट की कतार की सिम चली गई। वहां सड़क के एक तरफ रेस्टोरेंट थे तो दूसरी तरफ कतार में बेंच और मेज ऐसे लगी थी जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़श्ता रात की बारिश से अभी तक नम थी। जहां एक बेंच पे बैठ गया और कोहनिया मेज पे रखकर दोनों मुट्ठियां बाहर मिलाकर होंठों पे रखी उसे देखने लगा जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद साल बाद जब वो पलटी तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफी के कप और सैंडविचेस रखे थे। इसने सड़क पार की और ट्रे में इस पे जहान के सामने रखी। शुक्रिया, इसने मुस्कुराकर कहते हुए कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ। बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए वो भी साख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? इसने आजर्दगी से सोचा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जहान सिकंदर 1 घंटे की मुसाफत तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन जताएंगे? करीबन जहान मुस्कुराकर कुछ कहते कहते रुका। इसकी आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ? इसकी निगाहें हया के चेहरे पर से फिसलती गर्दन पे जा टिकी और होंठ और गर्दन पे। तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लग गई थी। कैसे? वो जरा तफक्कुर से कहता आगे को हुआ और कप मेज पे रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। उसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई थी। ओ अब ठीक हो? हया ने इस बात में से हिला दिया। और ये तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करना कब से शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाली साथ छोड़ गई। एक बोझल सी खामोशी दोनों के दरमियान हायल हो गई। एक ना खत्म होने वाले कर्ब ने सड़क किनारे लगे बेंचेस की कतार को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे जर्द लीमों से मुशाबे थी उछालते हुए चला रहा था कि कोई गेंद गिर ना पाती थी। खैर ये 2 बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं है, बस चेहरे से लगती हैं। आयशे 20 साल की और छोटी बाहर 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों पे कुछ गिर गया था हादसाती तौर पे, वो आयशे ने उतार दिया। मगर तो फिक्र न करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मगर कुछ तो बदला है आया। वो कॉफी के घूंट लेता जरा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। वो इस बात में सर लाकर गेंदों का करतब दिखाते लड़के को देखने लगी। एक डॉली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह इसका पहरा दिया करता। एक मेजर अहमद था जो इसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे फोन कान से लगाए रखता था। एक अब्दुल रहमान था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद इसकी मदद के लिए आता था। और एक जहान सिकंदर था जो इसकी वजाहत पर मुतमईन हो जाता था, जो इसके चेहरे के जख्म तो देख सकता था मगर उनके पीछे इसकी जली हुई रूह उसे नजर नहीं आती थी। जो नजर आता था वो तो सब देख लेते थे, जो नहीं नजर आता था वो कोई कोई ही देख सकता था। और जहान ऐसे लोगों में शामिल नहीं था। दफतर मैसेज टोन बजी तो जहान ने मोबाइल जेब से निकाला और देखा। मम्मी को पता करने आया था, इनकी तफ्तीश शुरू हो गई। वो पैगाम का जवाब टाइप करते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, तुम जितनी उनकी मानते हो मैं जानती हूँ। वो मुझसे कुछ मनवाती नहीं है, वरना शायद मैं इनकी वाकई मानता। इसने पैगाम भेजकर सेल फोन वहीं मेज पर डाल दिया। हया ने एक नजर इसके फोन को देखा। तो समवन स्पेशल कौन था जिसने तुम्हें गिफ्ट दिया? जहान ने मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। तो ये तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इतने सवाल पूछती हूँ ना तो मेरे फोन के बारे में। हया ने फोन उसके हाथ से लेकर वापस मेज पे रखा। बात को टालो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया। ये मेरा ऑफिशियल फोन था, मेरी जॉब का फोन मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस? उसकी आंखों में उलझन उभरी। मगर तुम तो अपना काम करते हो ना। हमेशा से तो अपना नहीं करता था। ये रेस्टोरेंट तो 1.5-2 साल पहले खोला है। इससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो जर्द गेंदे उछालते बच्चे को देखकर
धीमा सा मुस्कुरा रहा था। इस वक्त इसकी आंखों में कोई ऐसा नर्म सा तासुर था जो है ने सिर्फ एक दफा पहले देखा था। जैसे वो कुछ याद कर रहा था, कोई गुमगुश्ता किस्सा। एक बात कहूँ जहान, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब और अपना बॉस बहुत पसंद था। वो बखौर उसके चेहरे की तासुरात को देखते हुए बोली। तो जहान ने बुरी तरह से चौंक कर उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में जो चमक और जो मोहब्बत आई ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे किचन में मुझे स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। और अब भी ये सब कहते हुए तुम्हारे चेहरे पे एकदम से इतना ग्लो करने लग गया कि मुझे लगा इस जिक्र से वाबस्ता कोई खास याद तुम्हारे जहन में चल रही है। तुम तो चेहरे पढ़ने लग गई हो। वो जैसे संभल कर मुस्कुराया। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज्यादा, बड़े ऐश थे तब। अपनी राजधानी अपनी जगह की बात थी, कुछ और होती है। वो अपने चेहरे के तासुरात हल्ला रखे दोबारा कहीं पीछे न जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज दफा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी सल्तनत से खुद को खुद जिलावतन करना पड़ता है। शहजादों के जजीरों को तुर्की में अदलार के कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन शहजादों को जिला वतन करके भेजा जाता था जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा लगते थे। वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ जहां वो जिला वतन शहजादे अपने पुराने शाहना दौर को तन्हा याद करते होंगे, कितना याद करते होंगे। और जो खुद को ही जिला वतन करते हैं उनकी याद में तकलीफ भी डराती होगी। फिर इसने धीरे से सर झटका। आओ समंदर पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साहिल समंदर पे पत्थरों की कतार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़ उड़कर जहान के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो इन्हें नहीं समझ रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करवा रहा हूँ और मेरी लैंडलेडी भी कोई लाल वकील कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना महंगा लाया कर सके। हया का दिल आजरदगी के समंदर में डूब कर उभरा। वो जानती थी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो सब उसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भाग कर इधर आया हूँ। जरा लो प्रोफाइल रखी हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला। तुम इससे इतना डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामा और साहिबा मामी के सिवा किसी से नहीं हूँ। समंदर की एक तेज लहर आई और उनके कदमों को भिगो कर वापस पलट गई। ओह,